हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक। व्हाट इज द हियर इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रॉक? देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। द मैन हैज been interacting with the surface of the earth since the long. With the time and the advancement in the technology and the making a different use of the rock and mineral. The importance of rock is given below. There is the most important. What is the important for the rock? There is the most important value of economics. There is a rock. The first point here of soil. Soil are derived from the rock. Soil provide to suitability for the agriculture product that provide to food from the mention and provide to raw material for many industries. There is the most important here economical value of rock. There is a soil. Soil has there is a agriculture productivity. That is also important. And the next here a building material. The rock are the source of types of building material, and there is a direct indirect industrial. There is the most important. The direct indirectly there is a building materials, and there is a granite, genus and sandstone marbles, and so there is extensive of use of construction of building. Example, you know that Taj Mahal is made of white marble in from Agra, and the Red Fort in Delhi there is made by the red stone. There is a sandstone. There is a most important, the red sandstone. There is a most important slightly are used for the roof purpose and different part of India. There is also important here. You know that granite, and the sandstone marble are slightly extremely are the construction of building material. Taj Mahal and Red Fort has example. And next here, the use of the mineral resource of important economical importance for the rock here. It is a mineral resource. The mineral are the foundation of the modern civilization. Metallic mineral provide all metal ranging from a very prevision gold, platinums, and silver, copper, and aluminum and the iron. There is the most important here, and this metal are obtained from different rock. There is the most important here. There is a silver, copper, aluminums, and the gold. There is obtained from the different rock. And the next here, raw materials is also important. Contain rock materials and minerals are used as raw materials for many industries. Example, cement industries, and the limestone kilns. Different types of rock and mineral are used to production of the finishing goods. And the granite is also used in the scribiums and pencil manufacturing as a raw material. You know that there is the most important, the granite, and use of the crucible and the pencil manufacture of the raw materials. There is a raw material is the most important for the industries, and the cement industry and limestone. And the next year, because the stone, because the stones are metal are obtained from a different metaphoric and ignorance rock. There is a diamond is a precious stone used for jewelry and the metaphoric rock. Similarly, the other precious stone like a gems, rubies, and the spanners and obtained from different types of rock. There is also important. You know that jewelries are made by the different rock. There is a metaphoric rock a different color. There is a make of jewelry, diamond, and the produced stone. And there is the most important here. The next here, fuel. You can fuse that. The fuel are used for the raw is a rock. There is impossible, but here it is important. The fuel in there is a form of coal and petroleum, natural gas, and nuclear minerals are derived from a different rock. You know that there is a fuel is a form of coal, petrol, natural gas, and nuclear minerals are derived from the different rock. And the fertilizer, you are also confused. Fertilizer use of rock, economical purpose, there is impossible, but here is important. The fertilizer are also derived from some rocks. Is a phosphatics fertilizers are obtained from phosphorites minerals found in some part of the world. There is a fertilizer use of the rock. There is a most economical value here, and the most important
Part here, the rock and minerals are main source of all metal, particularly stone, solid fuel, and raw material from industries. That is the most important for the economical value of rock here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है बात की, जो शैलों का आर्थिक महत्व, यानी जो हमारा रॉक होती है यानी चट्टानें होती है, उसका हमारे लिए आर्थिक महत्व क्या है। दोस्तों, ये आपको जान के हैरानी होगी कि कहते हैं हमारा घर से लेकर जहाँ तक भी आप इस्तेमाल कुछ भी करते हो, सब इन्हीं पत्थरों से बने होते हैं। और आजकल तो आपको पता भी है कि मार्बल का जो लोगों पे क्रेज चल रखा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और रॉक की इतनी महत्वपूर्ण जो है आर्थिक इम्पोर्टेंस है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि आज कल इतने कुछ बन रहे हैं, इतने कुछ हो रहे हैं, सब मार्बल से ही बन रहे हैं। और लोग इसको जो है काफ़ी पसंद भी करते हैं। इवन कि अगर आप ज्वेलरी यूज़ करते हो, गहने यूज़ करते हो, डायमंड, सब इन सब चीज़ों में जो है रॉक का इस्तेमाल होती है। तो कई पर्पज़ से जो है रॉक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये आर्थिक तौर पे भी आजकल जो है लाखों के जो करोड़ों के जो होती है लेन देन, वो रॉक के रिगार्डिंग ही होती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए रॉक कितने इम्पोर्टेंट है, यानी ये जो शैलें होते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और इसको बनना भी एक दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आने वाले समय में भी हम इसका चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं कि शैलों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है। कहते हैं मनुष्य पृथ्वी तल पर विविध क्रियाकलाप लंबे समय से कर रहा है, यानी अगर हम मानव की हिस्ट्री देखें तो कहते हैं 5000 साल पुराना है, उससे भी पुराना हो सकता है। ये तो हम जनरली है कुछ ग्रंथ के रिगार्डिंग बता देते हैं कि 5000 साल पुराना है, लेकिन अगर देखा जाए तो मानव इतिहास बहुत ही पुराना है। और समय और तकनीकी विकास के साथ वह शैलों और खनिजों का विविध उपयोग भी कर रहा है, और ये ज़रूरी भी है। आपको जो ये जितने पत्थर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, अगर आपको याद होगा तो पहले के समय में जो आदि मानव लोग हुआ करते थे, आपस में पत्थर के टकरा के जो है आग उत्पन्न किया करते थे। तो आप समझ सकते हो कि पत्थर का उपयोग उसमें कितना रहा होगा। और इवन कि हथियार के तौर पे भी यूज़ करते थे, पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। और अगर आप आधुनिक समय की बात करोगे तो आजकल अगर दंगा फसाद होता है तो लोग पत्थर उठा के एक दूसरे को मारते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका यूज़ कितना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ आती है कि समय और तकनीकी विकास के साथ वह शैलों और खनिजों का विविध उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता गया है, वैसे वैसे मनुष्य की जो है सुख सुविधाओं के लिए शैलों और खनिजों की उपयोगिता भी बढ़ती गई है। शैलों के महत्व के संबंध में संक्षिप्त जानकारी हमें कुछ यहाँ प्राप्त है, जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट बात क्या है। सबसे पहले हम मृदा यानी मिट्टी। देखिए, कहते हैं रॉक, चट्टान। आपको अगर फॉर्मेशन ऑफ सोयल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे होता है। इसके बारे में जो है हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, आगे करेंगे, जो कि रहेगा कि सोयल की फॉर्मेशन कैसे होती है। लेकिन थोड़ा सा बात मैं यहाँ बता ही दूंगा कि सोयल देखिए बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और पत्थर जो होते हैं चटक चटक के जो टुकड़े होते हैं, उससे जो है मिट्टियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मृदा के रूप में अगर हम देखें तो पत्थरों का कितना उपयोग हो सकता है, तो कहते हैं मृदा शैलों से प्राप्त होती है, और मृदा से जो है मानव के लिए भोजन भी मिलता है, और इसके साथ विभिन्न कृषि उत्पादों में उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। आप सोचिएगा कि मिट्टी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी से ही सब कुछ हमें प्राप्त होती है। आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो, करते हो, वो सारे जो है मिट्टी में ही उपजती है। और ये मिट्टी जो होती है बड़े बड़े पत्थरों के टूटे हुए ही पार्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हो इसमें कितने मिनरल्स जो होते हैं मौजूद होते हैं, जो आपको शायद पहले इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। तभी तो कहता हूँ अगर आप समझिएगा तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको प्राप्त भी होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है इम्पोर्टेंट में है भवन निर्माणकारी सामग्री। देखिए, भवन निर्माणकारी सामग्री, अब सोचिएगा कि भवन निर्माणकारी सामग्री, जिसके बारे में पहले मैंने बता दिया था कि बड़े शैलों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे के सारे जो होते हैं भवन निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। शैलों के सभी प्रकार के भवनों की सामग्री एकत्र भी होता है। ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर और स्लेट आदि का जो है मकान बनाने में भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। अगर आपको एग्जाम्पल पता भी होगा, याद भी होगा कि ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी, और दिल्ली का जो लाल किला होगा वो जो होगा लाल पत्थर, बलुआई पत्थर से, लाल बलुआई पत्थर से बनाई गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय बड़े बड़े जो हमारे समक्ष था, जो ग्रेनाइट थी यानी संगमरमर थी, तो उसका जो है ताजमहल बनाने के लिए उपयोग किया गया था। और आज भी जो है ताजमहल उसी प्रकार चमक रही है जैसे पहले के समय में चमकती थी।
बेशकली आज हम कुछ गंदगी फैला के इसको गंदा कर दिए हैं, जिसका जो है भविष्य में इसका देखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं इसी के निर्माण में जो है बहुत सारे पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो सबसे बड़ा हमारे समक्ष साक्ष्य के रूप में है। दिल्ली और आगरा के लाल किला के तथा बलुआ पत्थर से बने हैं और भारत विदेश में भी स्लेट का उपयोग छतों के निर्माण में किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से विदेशों में भी और भारत में भी स्लेटों का निर्माण जो है प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष खनिज के स्रोत के रूप में देखिए, ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि आखिर पत्थरों का उपयोग जो खनिज के स्रोत के रूप में कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है संभव। आपको पता होना चाहिए कि खनिज आधुनिक सभ्यताओं की आधारशिला है। आधुनिकता में हम तो चले गए हैं, लेकिन आधुनिकता में जो है खनिजों का बहुत ही बड़ा अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं धात्विक खनिजों में जो है मूल्यवान सोना, प्लेटिनियम, चांदी, तांबा से लेकर एल्युमिनियम और लोहा भी मिलता है, और ये धात्विक खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं पत्थर में ही आपको जो है मूल्यवान सोना हो, प्लेटिनियम हो, चांदी हो, तांबा हो, इन सभी चीज़ों का जो है खनिज जितने भी होते हैं सबके सब शैलों में ही निर्माण होते हैं, और ये हमारे लिए जो है खजाना के रूप में होता है। तो शैलों का जो है पत्थरों का, स्टोनों का इतना अधिक उपयोग शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। अगला बात अगर हम देखें तो कच्चा माल के रूप में कहते हैं कई शैलों और खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। सीमेंट उद्योग, चूना भट्टी में कई प्रकार के शैलों और खनिजों का उपयोग तैयार माल प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ग्रेनाइट का उपयोग सुरमा और पेंसिल निर्माण उद्योगों में किया जा रहा है। देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया कि जितने भी घरों का निर्माण होता है उसमें सीमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और सीमेंट का उपयोग जो है निर्माण भी मिट्टियों से ही होती है, यानी स्टोन से ही होती है, चट्टानों से ही होती है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर आप एक पेंसिल भी यूज़ कर रहे हो ना, तो वो भी जो होता है ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट जो होता है देखा स्टोन ही की तरह होता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट जो है पेंसिलों में जो उपयोग होती है, या सुरमा है, सभी का जो उपयोग है, इसका जो मेन उद्भव स्थान है वो पत्थर ही है, यानी रॉक ही है, शैलों से ही इसका निर्माण होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर आगे हम बात करें मूल्यवान पत्थर, यानी विभिन्न प्रकार की जो है रूपांतरित अथवा आग्नेय शैलों से प्राप्त होते हैं। हीरा बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, और इसका उपयोग जो है जवाहरात बनाने में होता है, और ये एक रूपांतरित शैली है। शैल है, एक रूपांतरित शैली के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार दूसरे मूल्यवान पत्थर जैसे पन्ना हो गया, नीलम हो गया, आदि भी विभिन्न प्रकार के शैलों से ही प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको हम हीरा कहते हैं, जो बहुत ही मूल्यवान पत्थर के रूप में होता है। और देखिए इस पत्थर का कितना कीमत होता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि भारत जो कैन्यूर हीरा था वो अभी इंग्लैंड के पास है, और इसी के लिए भारत जाना भी जाता था। लेकिन बेशकली अभी जो है अंग्रेजों ने अपने चाल चल के जो है अपने देशों में संरक्षित कर लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी वो दोबारा आ जाए, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो कि इतने मूल्यवान जो है पत्थर ही होते हैं, तो पत्थर कितना इंपॉर्टेंट माना जा सकता है ये आप समझ सकते हो। और इसका जो है मुख्य धारा जो होती है जहाँ से प्राप्त होती है वो रूपांतरित शैली से होती हैं, यानी जो रूपांतरित शैल होते हैं, रूपांतरित चट्टान होते हैं, उससे जो है हीरा प्राप्त होती है। और साथ में जो है हीरा प्राप्त के साथ वो वहाँ पर पन्ना भी आपको मिलेगा, नीलम भी मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो होते हैं रूपांतरित शैलों से ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये आग्नेय शैलों से, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत उच्च तापमान पर जो है इसका निर्माण होता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि कोयला एक खनिज होता है जो कि पत्थर के रूप में होता है। ठीक है, वहाँ पर जो है सोने का भी निर्माण होता है, और वहाँ पर आप हीरो का भी निर्माण होता है, क्योंकि कार्बन आपस में बॉन्डिंग करते हैं तब इन चीज़ों का निर्माण होता है, और इनके निर्माण में लाखों साल लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात जो है यहाँ इम्पोर्टेंट है हमारा भौगोलिक के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ईंधन के रूप में। आप कंफ्यूज हो जाओगे ईंधन के रूप में। जैसे मैंने अभी बात किया कि कोयला, देखिए कोयला भी जो है हमारा एक पत्थर का ही रूप होता है। अगर आपने कोयला देखा होगा तो बहुत कठोर होता है, और इसको हथौड़े से तोड़ के जो है हम अग्नि के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो है एक तरह का पत्थर ही होता है, एक तरह का शैली होती है। यानी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिज ईंधन है, परंतु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के शैलों से ही मिलती है। आपका कन्फ्यूजन ये होगा कि पेट्रोलियम
और प्राकृतिक गैस कैसे मिलते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो पत्थर होते हैं, पत्थर के नीचे जो है बहुत साल पहले जीव जंतु मर गए थे, सड़ गए थे, दब गए थे, और इनका रूपांतरण जो होता था जो है पेट्रोलियम के रूप में हो गया धीरे धीरे, ठीक है। और इस तरह से जो है उन्हीं चट्टानों में जो है इनका रिसाव हुआ। और ये अब जाके जो है हम, क्योंकि हम साइंस के ज़माने में रह रहे हैं, साइंस आज बहुत तरक्की कर गया है, तो साइंस जो है इन चीज़ों को खोज बहुत आसानी से कर लेता है। और इसका उपयोग तो आप जानते ही होंगे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का इतना उपयोग हो गया है, कहते हैं इसके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए रॉक हो सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है उर्वरक। अब देखिए, जैसे कि हमने पहला पॉइंट में यही बात किया था कि उर्वरक के रूप में, यानी मिट्टी में जो होते हैं पत्थरों से ही बने होते हैं मिट्टी, हमने विचार किया था, हमने चर्चा भी किया था। तो इसका उर्वरक में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे? देखिए, उर्वरक भी शैलों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। फास्फेट उर्वरक फेरेनाइट नामक खनिज से मिलता है। देखिए, फास्फेट बहुत यूजफुल होता है पर प्लांट के लिए। अब कहते हैं इन प्लांट्स के लिए जो उर्वरक होती है वो फास्फोराइट नामक खनिज से हमें प्राप्त होती है, यानी एक पत्थर होता है उससे हमें फास्फेट नामक उर्वरक प्राप्त होती है। संसार कुछ भागों में फास्फोराइट खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए जो है हर क्षेत्र में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अधिक मात्रा में होता है, तो इस कारण से इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम बात यहाँ पर करें एक फैक्ट की, तो ये बात साफ यहाँ पर हो चुका है कि सेल और खनिज आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये सभी प्रकार की धातु और मूल्यवान पत्थर और उद्योग के माल और ईंधन के स्रोत के रूप में होते हैं, ठीक है। तो आप अब ये नहीं कहिएगा कि हमें पता नहीं है कि रॉक का कितना इकोनॉमिकल वैल्यू है। मैंने हर एक बात जो है बहुत विस्तारपूर्वक और अच्छे समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसमें से दो बातें इंपॉर्टेंट ये रहता है, पहला तो ये होता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का आपने हेल्प करना है। और दूसरी बात ये था कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में रहेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में आपको ये भी इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त रहेगा। देखिए, अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा, सोचिएगा कि मैं यूट्यूब से रिसर्च करके जो है तिरपान स्टडी सेंटर का वीडियो प्राप्त कर लूँगा, तो शायद संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक रिसर्च करोगे तो तिरपान स्टडी सेंटर का नहीं आएगा, बेशकली वो होगा भी फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो वो आएगा जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन आपको तो मेरी बातें समझ में जल्दी आ रही है, तो आपको मेरा वीडियो चाहिए, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा, आपका होम पेज मिल जाएगा, और होम पेज पे जो है सारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर जो है एक लाइन से ही सभी वीडियो को बनाया जा रहा है, तो आपको प्राप्त करना, ढूंढना भी बड़े आसान हो जाएगा।